Hello students, welcome to MDC Learning. I'm going to change you the subject Financial Accounting and we are studying TYBCom semester 6. Today we are going to start with the new chapter, that is Accounting of Transaction of Foreign Currency. Chalo, let's study it. Accounting of transaction of foreign currency is governed by Accounting Standard 11. Students, please remember this very well. बच्चों, ये जो फॉरेन करेंसी का ट्रांजैक्शन है वो स्टैंडर्ड 11 से गवर्न होता है. ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू और फॉल्स कहीं पे भी आ सकता है. सो दिस इज वेरी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग? What do you understand the meaning of accounting of transaction of foreign currency? Now, what do you mean by foreign currency, बच्चों? Foreign currency means we are talking about the currency of some other country. Accounting means writing in the books of an accounts. Transaction, you know what is the meaning of a transaction? A dealing between two or more person is called as transaction. But when I'm talking about the foreign currency transaction, here I'm talking between the dealing between one or two countries. Here I'm talking about import, export. Are you getting it? So the meaning, I've not written any definition and all that. Simple meaning is what? When I'm talking about the import and export, I'm talking about the accounting standard of foreign currency. When I'm talking about foreign currency, that means here the currency of two different countries come into the existence. So how it is going to be recorded in the books of accounts? For example, I'm staying in Mumbai. I import goods. Import मतलब खरीदा मैंने. खरीदने के कारण सपोज मैंने यूएस से गुड्स खरीदा. From US the goods is coming at my place. So now US person is going to make a bill in dollars. The goods will come to, I'll receive the bill in dollars. But in dollars, I cannot record in my books of accounts because according to Indian Companies Act, what is the thing? We have to record the transaction in rupees. So conversion of from dollars to rupees is here we talk about. That is your standard 11 is talking about. So now let's do first. Which transaction need to be translate? Translate मतलब converted. कौन से transaction convert होंगे? A concern may enter into the following transaction in foreign currency. You may import the goods. You may export the goods. Import the goods मतलब आपने goods खरीदा. Export मतलब आपने goods बेचा. Purchase price आएगा. Loan taken आएगा. Purchase price यहाँ पे we are talking about the capital goods. आपने अगर किसी फॉरेन का बैंक से लोन लिया होगा, सिर्फ बड़ी कंपनीज होती है, दे ऑल्सो टेक द लोन फ्रॉम. सो दिस ऑल ट्रांजेक्शन नीड टू बी कन्वर्टेड. विच ट्रांजेक्शन नीड टू बी ट्रांसलेटेड मतलब विच ट्रांजेक्शन नीड टू बी कन्वर्टेड. सो इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, purchase of assets, loan taken, and all this currency has to be converted. Why the transaction has to be converted? Why it is required? See, अभी मैंने आपको 2 मिनट पहले बात बताई है. क्या बोला है? अगर मैंने किसी और कंट्री से, सपोज मैंने फ्रांस से खरीदा, तो फ्रांस के अंदर यूरो चलता है, इंडिया के अंदर रुपीस चलता है. तो जब मैंने अगर फ्रांस से कुछ सामान खरीदा तो उसने यूरो में बिल भेजा. एम आई करेक्ट? लेकिन मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई कैन नॉट राइट द ट्रांजेक्शंस इन यूरोस. आई हैव टू convert that euros into rupees. Are you getting it? So that time what I'm supposed to do? So why transaction needs to be why transaction is needed to be converted? See, about transaction take place in foreign currency. For example, if an Indian company import goods from US, the import invoice will say what? $10,000. Since Indian company keeps accounts in rupees, this import bill cannot be entered in the terms of US in its account. Under Companies Act, also the accounts has to be prepared in rupees because we are staying in India. India में रह रहे तो rupees में ही account maintain कर सकते. Therefore, the amount of import bill shown in US dollars must be converted into Indian rupees. That is why standard
11 gives you the information how the transaction will be recorded. When the transaction needs to be translated, when were converted, first is initial recognition. यहाँ पे immediate payment है ना. से immediate payment में बेटा कोई टेंशन नहीं होता है. मैंने पैसा दिया और गुड्स खरीदा. सो 80% ये चीज कब होता है? एट द सेम डे होता है. नाउ इफ यू आर अवेयर ऑफ इट, फॉरेन करेंसी का रेट वीकली, मंथली, डेली बेसिस पे चेंज होता है. आजकल अगर आप न्यूज़पेपर उठाओगे, हर डे डॉलर का रेट चेंज होता है. आर यू गेटिंग इट? हर डे डॉलर का रेट चेंज. तो अगर एवरी डे डॉलर का रेट चेंज हो रहा है तो मुझे वो ट्रांजैक्शन को बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करना है. लेकिन कैश में हो रहा है तो टेंशन ही नहीं है. उसने आज मेरा सामान वहाँ से डिलीवर करने के लिए भेजा, मैंने इमीडिएटली उसको पेमेंट दिया, तो उसका और मेरा ट्रांजैक्शन इज ओवर. पता है ना, कैश पेमेंट आपको पता है, आपको हर बार हम बोलते हैं इमीडिएट कैश पेमेंट के अंदर हमें टेंशन ही नहीं लेना होता है. एक हाथ से पैसा दिया, दूसरे हाथ से सामान लिया. आप बोलोगे मैंने पैसा तो दिया, सामान तो मुझे मिला. बेटा सामान मिला नहीं, लेकिन उसने वहां से डिलीवर कर दिया, वो आपको कभी ना कभी पहुंच जाएगा. सो इमीडिएट पेमेंट में देयर इज नो टेंशन. रिकंसिलिएशन इन द स्टेट कब आता है? जब हम क्रेडिट बेसिस पे बिजनेस करते हैं. क्रेडिट बेसिस पे क्या होगा? ऑन द डेट ऑफ परचेज और सेल्स आएगा एक. अगर वो बैलेंस शीट का डेट होता है, यानी कि 31 मार्च को मेरा बैलेंस शीट खत्म हो रहा है, मैं पेमेंट 31 मार्च के बाद करूंगी, तो मुझे बैलेंस शीट डेट के ऊपर भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा. ऑन द डेट ऑफ सेटलमेंट, फिर जिस दिन मैं पेमेंट करूंगी इस दिन. अब ये क्या होगा? देखो तीनों अलग अलग डेट हो सकती है. सपोज डेट ऑफ परचेज है 1 फरवरी, तो 1 फरवरी को डॉलर का रेट अलग होगा. 31 मार्च को मैं बैलेंस शीट क्लोज कर रही हूँ, तो 31 मार्च के दिन डॉलर्स का रेट अलग होगा. फिर मैं पेमेंट कर रही हूँ 31 मई, तो 31 मई के दिन डॉलर्स का भाव अलग होगा. सो यहाँ पे क्या होता है? व्हेन द डॉलर्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, that is my accounting problem. You know, this is my accounting problem. Exchange rate may differ. See, exchange rate चेंजेस हो सकता है. मैंने परचेस करते समय जब मैंने भेजा होगा, डॉलर का रेट एक अमाउंट, सपोज $1 45 रुपीज का था. जब मैं पेमेंट करने भेज रही हूँ तो डॉलर्स का रेट 44 रुपीज हो गया, यानी कि 1 रुपया कम हो गया. या 45 रुपीज हुआ, 1 रुपया, यानी कि डॉलर बढ़ भी सकता है, डॉलर्स का रेट कम भी हो सकता है. यस. सो वो चीज को हम अकाउंट्स में कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं? फॉर दैट वी आर लर्निंग accounting standards of foreign exchange. How we are going to deal it? If exchange loss, how will we record it? So this chapter में आपको हम सिखाएंगे कि अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो, तो इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे होगे तो उनका खरीदना बेचना इंटरनेशनली होने वाला है. तो वो ट्रांजैक्शंस हाउ यू आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. This is the thing we are going to teach you in this chapter. At what rate the transaction need to be transacted? At spot rate. Spot rate मतलब आज का जो रेट है. मैं मार्केट में जा रही हूँ, सपोज कल मैं यूएस घूमने जा रही हूँ, मेरे पास इंडियन रुपी है. आई गो टू द बैंक, आई से आई वांट द फॉरेन करेंसी. वो बोलेंगे आज का रेट मैडम 44 रुपीज है, मुझे आपको $100 चाहिए, 44,000 रुपीज दे दो. एम आई करेक्ट? आपको जो भी होगा मल्टीप्लीकेशन, देखो $1 44 रुपीज का, तो $10 4,400 रुपीज हो जाएगा. $100 will come to 44 rupees. That is a spot rate. Normally we record the transaction in the spot rate. Spot मतलब जिस दिन हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं हम उस दिन का लेंगे. आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा कि ये दिस डे द पेमेंट इज मेड, और नीचे कहीं पे उस दिन का डॉलर्स का रेट दिया जाएगा कन्वर्टेड इनटू द इंडियन रुपीज. Average rate is there, but we don't use it. Some company may use it. Average मतलब उन लोग average निकालते हैं, भाई खरीदा था, बेचा था and all that, but that is not there in your syllabus, so I will not talk about average. आपको पता है कैसे होता है?
दो रेट्स को ऐड किया डिवाइड बाय, अगर दो रेट्स को मैं ऐड करी तो दो को ऐड किया डिवाइड बाय 2 किया, जो मिडल रेट आएगा आई विल बी कंसिडरिंग दैट रेट, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन हम लोग को, एटलीस्ट इन टी वाई लेवल यू आर नॉट हैविंग अ एवरेज रेट। हम अकाउंट्स में डील करने वाले स्पॉट रेट को, तो स्पॉट रेट में हम कैसे ट्रांजैक्शंस करेंगे, क्या करेंगे, ये सब हम आपको इस चैप्टर्स में सिखाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये चैप्टर्स में ये समझना है कि आप किसी और कंट्री के साथ डील कर रहे हो, व्हेन यू आर डीलिंग विद सम अदर कंट्री, सो देयर विल बी द डिफरेंस ऑफ करेंसी। सो करेंसी का नॉर्मली अगर यूएस डॉलर्स में बात किया जाए तो हमारे इंडियन रुपीस कम है, अगर इंडियन का 44 रुपीज है तो वो यूएस का 1 रुपया होता है। आर यू गेटिंग इट? आज अगर मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन आज तो मेरे ख्याल से 70 रुपीज डॉलर्स का रेट है, डॉलर, सो $1 इज इक्वल टू इंडियन 70 रुपीज। अगर मैंने $100 का सामान खरीदा है, सो इंडियन में अगर इसको मैं कन्वर्ट करती हूँ तो 100 मल्टीप्लाई बाय 70 क्या आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 70, तो 7 के बाद 2 जीरो, दैट मीन्स दैट विल कम टू 1000 रुपीज। सो अगर मैं इधर उधर वो हम बोलेंगे हमने $100 का खरीदा, लेकिन इंडिया के अंदर वो 7000 का हो जाएगा। वहाँ पे अगर मैं $1000 की बात कर रही हूँ तो इंडिया के अंदर 7, फिर अगर वापस से एक जीरो ऐड हो जाएगा, करेक्ट ना, 70 है और यहाँ के 1000 मतलब 30, तो वो हो जाएगा 70,000। yes, so when we are dealing in two countries you have to be very specific। ये ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स में समझ में आएगा, प्लीज़ गो थ्रू द वीडियोस एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड इट एंड थैंक यू। इस चैप्टर में हमें ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ दो करेंसीज के बारे में बात करेंगे। सो फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू गिव यू अ न्यू प्रॉब्लम विच विल बी स्टार्टिंग इन फॉरेन करेंसीज। सिर्फ थोड़ा सा बेसिक टेक्स्ट बुक अगर होगा तो रीड कर लो, नहीं भी रीड करोगे सो व्हेन आई एम टीचिंग यू द प्रॉब्लम यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट। ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर, एंजॉय लर्निंग, बाय बच्चों।